Hello everyone. I hope you all are fine and healthy. Let us start today's lecture. In the previous lecture, we had discussed about the quantization of charge. It is a property of a charge that it is always quantized. Charges are always quantized. Apart from quantization of charge, we have another property, that is additivity of charge, which means that the charges are always additive in nature. Suppose if we have a system, I am taking this random system, okay, and in this system we have number of charges. Suppose I have n number of charges, say q1, here I have q2, q3 and nth charge is there. Then the whole charge that this system acquires, that will be the sum of all these point charges which are present in this system. So we will say that the total charge q is equals to the sum of all the point charges, that is q1 plus q2 plus q3 and so on, the nth charge. So the system is additive. So the charges are additive. With this we can see that charges are scalar quantity. Like the masses, charges are scalar in nature. We can easily add them up. One most important thing is that while adding the charges, their sign has to be considered. बिना साइन को पहचाने, बिना साइन को यूज किए हम उसे अच्छे तरीके से ऐड नहीं कर सकते. अगर आपको चार्जेस को प्रॉपर्ली ऐड अप करना है तो आपको उनके साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और द चार्ज इज नेगेटिव. बिकॉज हम ये चीज जानते हैं कि मैथमेटिकल वे में जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिस्टम कंटेन्स चार्ज, if this is a system and a system contains charge plus 5q minus 3q plus 7q minus 2q, then the total charge for the system containing this number of charge will be, total charge will be of a system is equals to 5q plus minus 3q plus this 7q which is of positive sign and then minus 2q. We will get plus 12q means positive charge plus 12q and minus 5q. So we end up with 7q of the plus sign. That means the total charge acquired by the system will be plus 7q. Okay. So this was the example that we have, that the proper signs have to be used while adding the charges in a system. बिना प्रॉपर साइन को यूज किए we cannot add the charges. Okay. Apart from the additivity of charge, it has one more property, that the charges are always conserved. Let us write this: conservation of charge. Conservation of charge. According to this property, the overall charge of an isolated system will remains constant or conserved. कि किसी भी सिस्टम का जो ओवरऑल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा. इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एक नेट चार्ज को हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, नेट चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमने न्यूट्रॉन से हमने एक प्रोटॉन बनाया प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाया. Now we all know that neutron has zero charge. न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, so it has zero charge. But जब न्यूट्रॉन को एनिहिलेट किया गया, न्यूट्रॉन से जब को तोड़ा गया तो उससे आपके पास दो पार्टिकल्स आए which was
proton having +1 charge and an electron having -1 charge. So we can easily see that the total charge was 0 before and after the production. अगर +1 और -1 को एड अप करते हैं, +1 -1, we simply get 0. So the total charge of this system, जो पूरा सिस्टम था इसमें टोटल चार्ज प्रोडक्शन से पहले भी 0 था, बिफोर इट वाज आल्सो 0 एंड आफ्टर आल्सो प्रोडक्शन होने के बाद, न्यू पार्टिकल्स के बनने के बाद भी जो चार्ज है इट इज 0. तो चार्जेस को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्जेस को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स हैं, आप उनको क्रिएट डिस्ट्रॉय कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे चार्ज पहले सिर्फ न्यूट्रॉन के ऊपर था विच वॉज 0, बट हमने चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स क्रिएट किए विच वॉज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज, वी कैन ओनली क्रिएट और डिस्ट्रॉय दी चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स. देखिए अगर ये पूरे सिस्टम की बात की जाए, जो पूरा सिस्टम है हमारा, इसमें जो चार्ज है वो प्रोडक्शन से पहले भी 0 था और प्रोडक्शन होने, न्यू पार्टिकल्स के प्रोड्यूस होने के बाद भी जो नेट चार्ज है वो 0 ही रहा. तो जो चार्ज है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया. इसी तरीके से आप देखिए, अगर कोई दो इंसुलेटिंग बॉडीज हैं, अगर हम उनका आपस में रब करते हैं, सपोज एक ग्लास रोड है और एक सिल्क है, अगर हम ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं, रबिंग करने से पहले ग्लास रोड पर कोई चार्ज नहीं था, इट वाज 0, और सिल्क क्लॉथ पे भी कोई चार्ज नहीं था. लेकिन जैसे हमने दो बॉडीज को आपस में रब किया, ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया, द ग्लास रोड गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. तो ऐसा क्यों हुआ? जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस हुई, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए फ्रॉम ग्लास रोड टू द सिल्क क्लॉथ, वो इक्वल थे. तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से जंप करके सिल्क पे गए हैं, उतना ही पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पे आ गया और उतनी सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पे आ गया. तो ओवरऑल चार्ज है आपके सिस्टम का, इट इज कंजर्व्ड. ठीक है, चार्जेस कभी क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, लेकिन हम सिर्फ उसको कंजर्व करके रख सकते हैं. हमारे सिस्टम में जो ओवरऑल चार्जेस हैं, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कंजर्व.